We thought we were in the Hello. Yeah, hello. Can you hear us? We can hear hardly you. very soft though. Can you be a little louder? Be Yeah. a little Am closer I, to am I your. audible now? Yeah. Yes. Yeah. Tell me, ma'am, how we can Uh, proceed? देखो So, हमें ना briefly, what is your exact requirement? हाँ which you want to just show, just do share screen. रिक्वायरमेंट बोल देना ना आपको जो चाहिए हाँ, but we'll just show him. Showing is easier than telling. Okay, so are you able to see our screen? Not yet. Yeah, it's visible now. Please go ahead. Okay. So basically, we have this. कहीं और email खोला है? ये रहा ना? नहीं. क्लाइंट रिलेशन का कहाँ पे? आपको किसका चाहिए? क्लाइंट रिलेशंस. हाँ यहाँ पे आप क्लिक करो यहाँ पे ये क्लाइंट रिलेशन That be the other one. This is opportunity. Okay. So basically, the way we work is there's this common email जहाँ पे हम सारे client communications करते हैं. Okay, Okay. it is client relations, right? Yeah, client relations, the same one from which we send emails. Okay. So what we want you in charge of is emails going to clients for trade allocations. Okay. Okay. Can you open one sample email, please? Yeah, that is what I was going to just show you. तो trade allocations दो तरह की होती हैं. एक तो when there's a trade allocation which is specific to a client. Okay. Okay. तो जैसे ये पहली बार कोई client आया है. He or she wants to add money. So this person added 5 lakhs. Shravani Das. And this is the allocation we made for the first time for her. This is on what basis? Is this your Our model fundamental for? research basis. So we will have to obviously send you instructions because it's Okay. not so automated at the moment. तो And we will, अभी आपके पास कोई स्ट्रेटजीज या स्कीम्स वगैरह हैं जिनके अंडर आप इन्वेस्टर को ऑनबोर्ड करते हो या सब अंडर सिंगल पूल है? there are no pool accounts. नहीं, पूल इन द सेंस सब एक ही स्ट्रेटजी में है कि कोई अलग स्ट्रेटजीज भी है? हाँ, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा. नहीं चलेगा नहीं, नो इशू. ट्रांसलेशन हाँ. ओके. तो टोटल पोर्टफोलियो इसमें लेटेस्ट वाला नहीं दिख रहा है. फेब डाल फेब आ रहा है. हाँ ये नहीं इसमें नहीं आ रहा इन्फो पे. चलो ठीक है, जो भी है. हाँ दिसंबर वाला दिखाती हूँ. तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है. So this is the first base point, right? You create a model. हाँ. This is your model. Now, what's the first column over here? Is the company name. ये Sector. but this is not helpful to you because this is just a dashboard for us. हमारा internal dashboard है. But this But is this is a the basis strategy for that your we have. generating the order, no? हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल्स देख रहे हैं हम, राइट? एंड ये जो है कॉलम, ये रफ एलोकेशन है टू स्टॉक्स. ठीक है. तो इसके बेसिस पे आपको दिख रहा है कि टाटा एलेक्सी अभी एवरेज सबके पास 8% है. ये करंट होल्डिंग है कि आपने जो इनिशियल एलोकेशन दिया? This is current holding as per जो previous day का market value है उस हिसाब से for equity. Yes, right? that's correct. That's correct. And what we can do is we can share with you on a weekly basis what is the strategy for this week. ऐसे we can keep a new SOP that every Monday by 9 AM I have to send you one Excel sheet that this week's allocations have to be like this. You know, that if there's any new money coming in. आपके लिए top benchmark ये 8% है. टाटा एलेक्सी आपको 8% रखना है across all investors, right? Correct. ठीक है. See, I'm telling you the trade module may not work for us, but I will let you decide that.
I understand I will that. let you decide that. I will just अभी because हम लोग को इतना टाइम हो गया, right? 2-3 हफ्ते. Yesterday I spoke to Vigil. I understand that हाँ, standard model will not work for you. We that's have right. to do some customization, or we need to do some work in Manually. Excel. हाँ, तो Yeah. मैंने अभी उदय से मैनुअल का ही बात किया है Okay. कि these guys are now leaving, so they are on their last 2-3 days. Okay. So then I'll be handling this on my own. Sure. Can you show me the total of this W column? What's the total of total allocation of all the scripts? That's what I think he wants to check. टोटल किया नहीं है हमने इधर, बट 100 ही है ये. अच्छा, 100. if there is any addition of new column is stocks, 100. 100. okay, Because this is that current includes your allocation, cash ना? also, right? हाँ, including cash. including cash and liquid Bs. Liquid Bs Okay. भी रखते हैं ना हम लोग. So आप बोल रहे हो कि आप ये वीकली रिव्यू करोगे मॉडल और हमको फॉरवर्ड करोगे, उसके बेसिस पे मुझे ऑर्डर जनरेट करने हैं, राइट? That's right. That's right. I think that will be the best SOP. अच्छा, ओके. Because then I इसमें also get the weekend to think about it. And आपका फिर वीक में सेट हो जाएगा. तो मंडे को कोई ट्रेड्स हैं, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे. पर मतलब वो 2 हफ्ते के लिए हम लोग फिक्स रख देंगे. नहीं, पर ये वीक में कभी कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब हाँ, उसमें तो कोई एक मिनट, प्रायोरिटी है? we'll come to that later. अभी पहले लॉजिक समझ लेते हैं. ओके, श्योर. So जैसे this 5 lakhs has come in, right? Hmm. Now when we are only buying few stocks, right? So Hmm. then in that week I'll say these are the only buys, पर ये right? So कौन we're डिसाइड only buying करेगा? banking. ये आप डिसाइड करके हमको इंटीमेट करोगे ना कि ये 4 Correct. स्टॉक्स बाय करने हैं, राइट? Correct, correct. तो जैसे इन लोग का इनका 5 लाख आया था, राइट? एंड मेरे को ही मालूम होएगा ना कि उन्होंने कितना कमिट किया है. तो हाँ, I understand उन्होंने that. 5 लाख दिया और 20 लाख कमिट किया था. ओके. तो 5 लाख के हिसाब से I'll have to tell you कि वो कितना कितना किस में डालना पड़ेगा. हाँ, पर वो एक्सेल में हम लोग चेक कर नहीं, सकते देखो. हैं कि देखिए ये तो नया क्लाइंट है, तो उसके लिए पूरा फ्रेश ही हो गया, आपको पूरा बाय करना है. 14, सपोज कोई क्लाइंट टॉपअप भी लेके आता है या इनफ्लो देता है एडिशनल, तो अपने को होल्डिंग भी देखना पड़ेगा ना, करंट होल्डिंग क्या है. लाइकवाइज मुझे डिफरेंशियल बाय करना है, वो भी सिनेरियो हो सकता है ना. अदर एक्सेल ट्रेड एलोकेशन शीट इनको नहीं हमने भेजी थी शायद. मैं एक दूसरे में देखती हूँ, एग्जाम्पल में Example over this. एक दूसरा सैंपल होगा. देख रहे हो ना आप? इसमें भी नहीं है. हाँ, यू कैन सी द एक्सेल शीट. तो हम लोग कैसे करते हैं एलोकेशन, जैसे आपने बोला एग्जिस्टिंग भी होएगा, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. ठीक है, तो ये हम लोग एक्चुअली मोतीलाल ओसवाल से डाउनलोड करते हैं. हाँ, एक ही सेकेंड ना. अलोकेशन, ये आपका अलोकेशन है, ये टारगेट अलोकेशन. ये क्वांटिटी, परचेज प्राइस, परचेज वैल्यू, एलोकेशन. दिस इज या टारगेट एलोकेशन. दिस इज ऑन मार्केट वैल्यू, दिस इज ऑन कॉस्ट वैल्यू, राइट? नहीं, टारगेट उधर है. ये टारगेट, ये आपका Cost. एग्जिस्टिंग एट मार्केट वैल्यू अलोकेशन है. हाँ. कॉस्ट. आई कॉलम. करंट एलोकेशन, टारगेट एलोकेशन. करेक्ट. ओके. तो ये हमने उधर से डाउनलोड किया. ये एलोकेशन हमने कैलकुलेट किया बिकॉज उसमें नहीं होता है एंड कृति में भी नहीं होता है. तो माय पॉइंट इज दैट नाउ यू हैव कृति, सो यू विल टेक कृति एंड यू माइट आल्सो हैव टू क्रॉस चेक कि मोतीलाल ओसवाल में भी सही है.
नहीं जबकि नहीं, हम यहाँ पे ये परसेंटेज आपने किस पे लिया है? आपने सिर्फ इक्विटी वैल्यू पे लिया है ना? आपने टोटल, आपका फॉर्मूला दिखाओ एक मिनट पर एलोकेशन का, क्लिक करो कोई भी सेल पे। टोटल नहीं, या ये इंडिविजुअल वाला? इंडिविजुअल स्टॉक का आपने कौन सा लिया है? आपने सिर्फ इक्विटी का लिया है प्राइस, आपने एयूएम नहीं लिया है, मतलब कैश इसमें नहीं लिया है, हाँ कुछ वो रिसीवेबल पेएबल नहीं लिया है, तो नहीं, that's because there is no cash, but सॉफ्टवेयर का और ideally ये it should मैच be ही नहीं taken होगा। as cash. सॉफ्टवेयर के That is साथ ये, current. मैं वही बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का एलोकेशन और ये एलोकेशन मैच नहीं होगा कभी भी, क्योंकि कभी भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर में हम लोग एक्चुअल एयूएम के बेसिस पे चलते हैं, सिर्फ इक्विटी बेसिस पे नहीं चलते हैं। हाँ तो ये मुझे आउट ऑफ द सिस्टम ही मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है। So then that's why I need a solution. I need someone in your team to हाँ, understand this properly. मैं समझ रहा हूँ, मैं उसी लिए बैठा हूँ, मैं वही तो समझ रहा हूँ। but Parag's team is here. हाँ हाँ, पराग भी है साथ में। Okay. मुझे इसमें फर्दर बताइए, एलोकेशन आ गया आपका करंट मार्केट वैल्यू, राइट? हाँ आपका मॉडल टारगेट एलोकेशन ये तो अभी था, मार्केट प्राइस के हिसाब से मार्केट वैल्यू आ गया, करंट एलोकेशन आ गया। आपकी अभी टारगेट हम लोग प्राइस। को पता है कि इतने पैसे डालने हैं। मतलब इधर क्या होता है, इधर लिक्विड बीज हम लोग बेच रहे हैं 30,000, रादर 31,000, एंड उसके अगेंस्ट हम लोग 1,000 बैलेंस रख के, सो 2 to 3%, आई मीन रादर 2% हम लोग स्पेयर रखते हैं, रिजर्व क्योंकि फॉर कुछ एनी रिजर्व इवेंचुअलिटीज, राइट? या एनी ब्रोकरेज, एनी कुछ एक्सपेंसेस आ गया, प्राइस चेंजेस, 2 to 5%। 5 थोड़ा ज्यादा हो जाता है, बट देर आर टाइम्स व्हेन 5% ऑल्सो कम पड़ता है। आपको इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्ट कितना करना है? 1 लाख इन्वेस्ट करना है, राइट? जो आपने यहाँ पे लिखा है नहीं 30,000। 30,000 ही इन्वेस्ट करना है। हाँ ये तो 1,000 क्या है? थर्टी अच्छा, वन 1,000 लिक्विड ही, बीज हाँ, सेल कर रहे हैं। समझ गया। तो 1,000 हम लोग कैश रख रहे हैं, और 30,000 ही हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो भी HDFC बैंक में, बिकॉज वी हैव अ बाय ऑन HDFC बैंक दैट वीक। ठीक है, दैट वीक वी टेल यू कि वी वांट टू बाय HDFC बैंक। ये MOSL के क्लाइंट्स के लिए ये डेटा आ जाता है पूरा, यहाँ तक आ जाता है पूरा डेटा, आई कॉलम तक। करेक्ट करेक्ट। आए तक अच्छा, नहीं नॉन आई तक MOSL नहीं के आता लिए है, एफ तक भी नहीं आता है, नहीं ई तक आता है। ई अब तक उसे आता है, बाकी के कॉलम्स आप डालते हो। अच्छा, so what Vijay and Nilanchal are saying is कि they just take these 3 from Motilal and plug it in the, मतलब obviously this also, because नाम ही सही नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो ये व्हाट सब अबाउट लेके ये फॉर्मेट में डाल देते हैं। नॉन MOSL क्लाइंट्स, उनके लिए कैसे करते हो? कृति नहीं, मतलब ये ऐसे शीट प्रिपेयर करते हो क्या कुछ MOSL के ऐसे ही लिए? शीट, हाँ यही शीट प्रिपेयर करते हैं। करेक्ट। वो दिखा देता हूँ। Here, एक मिनट, I'll just have Vijay show you the other one. ठीक। तो दिया था ना? नॉन इमर्सिव बता रहे हो ना, इमर्सिव में सोच करके कैसे पे। नहीं, उनको भी दिखा देता हूँ कैसे। अच्छा उसमें होता है, but they have access to immersive. ये शीट आपकी? पराग, पराग, हाँ बोलिए। हाँ आपने मोतीलाल का तो होल्डिंग देखा होगा ना आपने? ये देखो विजिट दिखा रहे हैं होल्डिंग की। तो यहाँ से क्लाइंट का नाम सर्च करके होल्डिंग में जाते हैं, इक्विटी। हाँ एक्सेल शीट में आ जाता है। तो एक बार ये आ गया ना, तो परसेंटेज कॉलम आप इंसर्ट करते हो? नहीं, यहाँ से हम लोग सिर्फ ये लेते हैं, ये जो है ना, अच्छा, पहले वो देखते हैं कि formulas इतने के सब लिए। स्टॉक्स है कि नहीं। हेलो। हाँ, समझ रहा हूँ। हाँ, तो अभी तो यहाँ पे मार्केट कितना? प्राइस, स्क्रिप्ट नेम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस, परचेज तो अभी वैल्यू, अगर मार्केट प्राइस। नहीं आता ये आप हर क्लाइंट का मेंटेन करते हो अभी मैन्युअली?
Sorry? एडिटिंग किधर गया यार, क्या चल रहा उसने कैंसिल कर दिया। What is he saying? है? हाँ, क्या बोल रहे हो? एवरी क्लाइंट का आप मेंटेन कर रहे हो क्या ऐसे अभी? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो मेरे Yeah, पास we एक can एक मेरे review. पास एक बड़ा डंप है, उसमें ये सब है यार, हर एक क्लाइंट का एलोकेशन है। ठीक है, ठीक है, तो ये हाँ, ये तो यहाँ समझ पे गया जाने, फर्स्ट स्टेप। क्या बोल रहे हो? First steps. ये स्टेप समझ गया, इसके आगे क्या हाँ, होता है? इसके तो आगे फिर यहाँ पे क्या डेट, बाय हाँ, तो करना है, फिर क्या यहाँ पे सेल डेट करना? चेंज। हाँ, नहीं तो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अभी हाँ। सपोज ये मेरे पास है, ठीक है, हम्म। तो और मुझे अभी क्या करना है कि सपोज कोटक महिंद्रा बैंक सेल करना है। ओके। ठीक है, ये पूरा सपोज 12,000 सेल करना है, जो 1.2 लाख है, और कुछ और बाय करना है सपोज। हम्म। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे डेट चेंज करेंगे। ठीक है, वो एक, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, क्वांटिटी टू बी ट्रेडेड, ये दिख रहा है आपको? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ना सब फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो सपोज अभी ये मैंने पुराना, ये 10 जनवरी का खोल दिया ना यहाँ पे, ये 10 जनवरी का फाइल है, अभी मेरे को एज हम्म। ऑफ टुडे बनाना है। हम्म। हाँ, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये ले लूंगा पहले, तो अपडेट करूंगा क्योंकि मेरा परचेस परचेस प्राइस, यार वो क्यों नहीं रहा है? उसकी एनेबल एडिटिंग नहीं किया हाँ, है। 1 मिनट, हाँ, मैंने जरा रूम का बीच में आया था तो मेरे को और एडिट करके निकालना नहीं है। तो अभी ये मेरा एमओएसएल का फाइल है, ठीक है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि मेरा सब क्वांटिटी सब स्टॉक्स है कि नहीं। अभी ये को यहाँ पे काउंट 16 दिख रहा है, ओके। यहाँ पे 16 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 है, मतलब एक स्टॉक कोई तो कम है। हम्म। ठीक है, तो मतलब कुछ तो बेचा रहेगा हम लोगों ने इसमें से, एसआरएफ बेचा है ना? सारा बेचा है। हाँ, तो यहाँ पे एसआरएफ बेचा है, वो हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। चेक करेंगे, देखो यहाँ पे एसआरएफ नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें से एसआरएफ डिलीट करो। ठीक है, बाकी सब स्टॉक्स है। पूरा स्टॉक अभी ये लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इधर। वैल्यू पेस्ट करो। ठीक है, I'm just stepping out to the board. और मार्केट प्राइस। I want that to गॉट इट। हाँ, ठीक है, ये हो गया बस। अभी अपने पास सब लेटेस्ट है। अंडरस्टूड। हाँ, वो कर देंगे। अभी यहाँ पे सपोज मुझे कोटक महिंद्रा बैंक पूरा बेचेगी। सपोज अगर हम लोग के इसमें आ गया कि सेल, मैम ने मतलब हुआ कि सेल करना है, तो यहाँ पे डालेंगे -112, मतलब जो भी है, या फिर डायरेक्ट यही ले लेंगे माइनस। वो पूरा मतलब ही आप देना। अमाउंट बेसिस पे ही करोगे ना हमेशा, हाँ, क्वांटिटी अमाउंट बेसिस बेसिस पे करते हैं, हाँ हाँ, अमाउंट बेसिस पे। पे? ओके। ठीक है, यहाँ पे अगर मैम ने बोला 60,000 बेचना है, आधा ही बेचना है, तो मैं इधर 60,000 डालूंगा सिर्फ, तो भी क्वांटिटी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ठीक है। राउंड राउंड डाउन किया है, ये फॉर्मूला लगाया है, तो क्वांटिटी अपने आप आ अंडरस्टूड। जाएगा। 60,000 बेचना है तो इतना क्वांटिटी बेचना पड़ेगा आज के प्राइस पे। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके। और अगर मुझे ये खरीद के ये बाय करना है, आईसीआईसीआई बैंक बाय करना है सपोज, 50,000 पर 50,000 का मुझे बाय करना है। मुझे विजिल इसमें बताओ, इसमें मॉडल का कहाँ रोल है? जो टारगेट एलोकेशन है, जो करंट एलोकेशन है, ये कहाँ प्ले होता है कुछ कि नहीं? देखो, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं बोलता हूँ, हम लोग है ना, मैम बोलती है कि हम लोग का अभी भी 8.4% है, अगर कोटक महिंद्रा बैंक बैंक अगर 8.4% है, ठीक है, उसको 4 करने का है। उसको 4% करने का है, तो हम लोग ये करेंगे ऐसा 60,000। अगर 5% करना था तो हम लोग ये करते हैं। सब क्लाइंट के लिए करेंगे, धीरे चेक करके उसमें। पर मतलब मैम ऐसे बोलती है ना कि एलोकेशन 4% कर दो। हाँ हाँ, हाँ। तो यही करना है, 8.4 है तो इसको 4 करना है, तो ऐसे हम लोग हाँ, ऐसे ही करते हैं। मतलब दोनों लेवल पे ऑर्डरिंग हो सकता है, एलोकेशन परसेंटेज पे भी हो सकता है और अमाउंट लेवल पे भी हो सकता है, राइट? हाँ मैं हाँ मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी डाल सकता हूँ ना एग्जाम, टारगेट एलोकेशन से माइनस करके जितना एक्सेस है उतने का हाँ क्वांटिटी सिस्टम सेल कर देगा। हाँ, आप जो भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, आपको जो करना है वो हम लोग ऐसा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अभी ये अच्छा, हो ये गया जब ये ये सेल आपने नक्की कर लिया कि ये सेल करके ये बाय करना है, हाँ, अभी ये आप ये क्लाइंट सेल, को ईमेल करते हो, राइट? हाँ, तो यहाँ पे ये ईमेल करते हैं हम लोग, ये अच्छा, शीट एक ईमेल। एक एक दिन में कितने इन्वेस्टर का ट्रेड होता है नॉर्मली? नॉर्मली देखो, अगर बहुत लोग के लिए करना रहेगा ना, तो हम लोग बल्क ट्रेड करते हैं, वो भी आपको क्या बताता करते हूँ, हैं? बल्क ट्रेड का भी बाद में बताता हूँ, पहले ये ओके। देख लो, एक एक
देखो बल्क ट्रेड बहुत कम होता है मोस्टली, तो वैसे सिंगल नहीं, क्लाइंट्स का ही नॉर्मली ज्यादा। एवरेज में कितने इन्वेस्टर का ट्रेड होता है दिन में? अभी तो बहुत कम है, लास्ट 2 महीने में तो एक भी ट्रेड नहीं हुआ, ऐसे ऐसे देखा जाए तो। में बेचा है। हाँ सिर्फ SRF फेक स्टॉक था तो सबके लिए बेचा है। ओके। ठीक है, तो ऐसे रेगुलरली ट्रेड नहीं होता है। 2 महीने में एक बार, 2 बार। हाँ, तो इतना टेंशन मत लो, ये ऐसे कम ही है। नहीं, अगर किसी मैं क्लाइंट ने टेंशन पैसे क्यों डाल लूंगा? दिए। हाँ मैं टेंशन नहीं, मैं सिर्फ वॉल्यूम समझना चाहता हूँ कि हाँ क्या हाँ, है, नहीं, नहीं नहीं, उस हिसाब इतना से इतना रिसोर्स इतना रिव्यू नहीं, देखता हाँ हूँ। नहीं नहीं, इतना ट्रबलसम नहीं है। अभी देखो अगर कोई, ये देखो ये कैश है ना, ये 56 जो दिख रहा है ना, ये हम्म। क्लाइंट के पास कैश है, अपने उसके अकाउंट में कैश है, जो डीमैट एमओएसएल अकाउंट। आपको रिपोर्ट कर रहा है, राइट? हाँ वो MOSL दे रहा है। अगर उन्होंने हम्म। यहाँ पे ये जो येलो है ना, अगर इन्होंने बोल दिया कि 30,000 क्लाइंट ने डाला है, 30,000, हम्म। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 30,000। ओके। तो मतलब इतना अपने पास एक्स्ट्रा कैश है, नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा कैश, क्योंकि हम लोग माइनस मतलब सेल कर रहे हैं ना। हम्म। ठीक है, और ये तो ये भी हाँ ऐसा है। तो सपोज अगर क्लाइंट ने डाला 30,000 डाल दिया, ठीक है, और मैम ने बोला ये भी 60,000 बेच दो और सब ICICI बैंक खरीद लो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो मैनुअली ये देखो डालना ये पड़ेगा। ये माइनस में रहना चाहिए, माइनस मतलब सरप्लस कैश बेसिकली। अच्छा, ये इंटीमेशन आपके यहाँ से आएगा ना कि आज किसका कैश आया है या कैश हाँ हाँ विड्रॉ हाँ, किया? मैम आपको कैश कैश का कैश और लिक्विड बीज का हम लोग एक ये बनाते हैं, फाइल बनाते हैं रोज, तो वो भी आपको भेज देंगे किसके पास कितना कैश है, लिक्विड बीज है। तो ये लिक्विड बीज जो है ना, लिक्विड बीज और निफ्टी बीज, इसमें हम लोग कैश होल्ड करते हैं क्लाइंट्स के लिए। समझ गया। हाँ, तो ये भी हाँ, तो वरना डीमैट से पे आउट होता है ना क्वार्टरली ये सब, तो हम लोग पे आउट बचाने के लिए इसमें डालते हैं। तो तो ये लिक्विड लिक्विड बीज बीज भी का भी कभी हम लोग के सेल पास। करते रहेंगे कैश जनरेट करने के लिए? क्या बोल रहे हो? कैश हाँ जनरेट करने के लिए लिक्विड बीज भी सेल करते हो हाँ रहे होगे ना? हाँ हाँ, वो आपको बताता हूँ मैं, एक मिनट पहले ये जरा ये ट्रेड एलोकेशन करते हैं, फिर बल्क ट्रेड का बताता हूँ, मतलब श्योर। मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए एक साथ करना रहेगा तो कैसे हाँ, करते हैं वो भी अभी बताता अभी हूँ। आपने यहाँ पे कोटक महिंद्रा सेल किया, सामने आपने आईसीआईसीआई बैंक बाय किया। ICICI बैंक ये बाय किया, ठीक है, अभी ये मैच हो गया, मतलब मैं हम्म। 60,000 ये बेच रहा हूँ, 30,000 मेरा इधर से आ रहा है, कैश से आ रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये, हम्म। ठीक है, तो 90,000 का मेरा टोटल कैश है, कैश आ जाएगा, उसके अगेंस्ट में 80,000 का बाय करूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी जाते हैं नेक्स्ट शीट पे। ठीक है, हाँ, तो अभी ये यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे बेसिकली सेल का वैल्यू है, ये जो है ना ट्रेड एलोकेशन वैल्यू, इसमें बेसिकली सेल कितना मतलब कैश कितना आएगा अपने पास। ठीक है, इसमें भी प्लस ये डालना चाहिए। हाँ, तो बेसिकली हम लोग के पास इतना कैश है। एक मिनट, ये फेच क्यों नहीं कर रहा है, एक मिनट। हाँ, जरा वो रेड कलर हटा देना ना, दिख नहीं रहा है वैल्यूज। अच्छा, एक मिनट। हाँ, बेच ही नहीं रहा है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली रेड कलर हम लोग सेल के लिए लगते हैं और कुछ नहीं, तो आपको हाँ, नहीं दिख नहीं वो रहा दिख है। नहीं रहा था इसके लिए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, अभी हम कोटक लोग क्या बैंक। कोटक बैंक बेच रहे हैं, राइट? तो ये जो हम्म। कोटक बैंक है ना, ये वैल्यू पेश करो उधर, और कुछ नहीं, यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक आ तो जाता है। ऑटोमेटिक आ जाएगा कि अपना एलोकेशन 3.9% है, मतलब करंट एलोकेशन। फिर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मार्केट प्राइस ये है, क्वांटिटी है, तो ये हमारे ट्रेडर के लिए, बेसिकली ट्रेडर और क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट सिर्फ इतना दिखता है, ईमेल में हम लोग ये बेचते हैं, ये ऐसा इसका करेक्ट। कॉपी पेस्ट करके बेचते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे जाता है। नहीं ठीक नहीं, है, ये एचडीएफसी बैंक का अपडेट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, नहीं वो करता हूँ मैं, ये नॉन तो ये एमएसएल भी वालों की होल्डिंग कहाँ से मिलती है आपको? आप ही कृति से। अच्छा, कृति से ही लेते हो होल्डिंग। हाँ, उनका कोई और वे नहीं है ना हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे। तो देखो ये सेल आ गया, ये बाय आ गया, नहीं नहीं, ये इतना टारगेट। पराग पूछ रहा है नॉन एमएसएल का कैश कहाँ से लेते हो? कैश हाँ, वो नहीं आप ही देते हो ना कैश। कैश के कंपनी बताते हो। वो नॉन एमोशन में काफी टाइम जीरो का रहता है, क्योंकि हम लोग जितना करते हैं उतना करते हैं, हेलो, उतना पूरा पेमेंट करते हैं। हाँ, नहीं समझा नहीं मैं। हेलो। हेलो, वो बोल रहा है नॉन एमएसएल में कृति में भी कैश नहीं रहेगा, जीरो कैश रहता। हाँ तो जीरो लेंगे और क्या। ठीक है।
हाँ यहाँ पे ये जो है ये जीरो आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली ये अपना जितना उसके पास कैश है, और ये जो येलो में है ये अगर डाल रहा है कोई एक्स्ट्रा कैश तो, नहीं तो ये जीरो ही रहेगा बेसिकली। अभी हमने अंडरस्टूड, अज्यूम किया कि ये कैश डालेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। ऐसे। तो अभी यहाँ पे ये टोटल मतलब ये अपना सेल करके इतना वैल्यू आएगा, ये नीचे है ये बाय करके मतलब मार्केट प्राइस एच डी आईसीआईसीआई बैंक जो क्वांटिटी और मार्केट प्राइस पे जो बाय होगा ये वैल्यू इधर आ गया, ठीक है। ओके, तो कैश बैलेंस कितना बचेगा, ये माइनस ये, ठीक है। समझ गए। ये हाँ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग क्या फिक्स वर्ड है? ये पोर्टफोलियो इधर नहीं ऐसा रीबैलेंसिंग कुछ नहीं, वो हम लोग चेंज करते हैं, अगर ये कर दिया अगर पैसा ऐड कर रहे हैं तो कैश एडिशन लिखते हैं, कैश एडिशन प्लस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ये ऐसे लिखते हैं। अगर सिर्फ विदाउट कैश हम लोग इधर उधर कर रहे हैं तो सिर्फ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग लिखते हैं। अगर फर्स्ट टाइम ट्रेड हो रहा है तो लिखते हैं फर्स्ट मतलब ऐसा इनिशियल कैश एडिशन। तो वो आपको आप मैम से पूछ लेना क्या लिखना है, वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक ये है, भी ये फिर आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स को ईमेल कर देते। हाँ। हाँ तो अभी ये हो गया ना, तो मैम जो बोल रही थी ना 2% 3%, तो ये है वो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस ये बाय और सेल दोनों का लेते हैं, मतलब ये बाय और ये सेल दोनों पे ब्रोकरेज जो लगेगा या फिर जो ऊपर नीचे होगा तो उतना कैश चाहिए बेसिकली, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ तो अभी ये हो गया ना, तो फिर हम लोग ये इसका ये लेके कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके मेल पे पेस्ट कर दो। ये ऐसे मेल पे पेश कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये मेल भी मैम ही लिख के देगी ना शायद, कि इनको ही लिखना है। इनको ही भेजना है, मैम बोली इनको ही भेजना है। ठीक है। तो इसमें अभी दो क्लाइंट हो गए। इन्वेस्टर इन्वेस्टर आपको बोलता है गो अहेड कि डीलर को बोलते डायरेक्टली? हाँ तो अभी बता, तो पहले हम लोग इन्वेस्टर को बेचते हैं। देखो दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। एक है कि जिन्होंने हमें अप्रूवल देके रखा है कि Blanket. आप ही ट्रेड करो, इसको Okay. बोलते हैं ब्लैंकेट अप्रूवल, ओके, ठीक है। तो हम लोग को उनको पूछने का जरूरत नहीं रहता, सीधा डीलर को बेचते हैं उनको सीसी में रख के क्लाइंट को, ठीक है। ठीक है। और दूसरा रहता है कि पहले वो इनको भेजना रहता है, अभी जैसे डियर रिया, तो ये करके ये हम लोग का है होप यू आर डूइंग वेल, और इनको बेचते हैं और ये लिखते हैं काइंडली गिव अस योर गो अहेड एंड वी विल गेट द ट्रेड एग्जीक्यूटेड। तो पहले ये क्लाइंट को जाता है, फिर क्लाइंट अप्रूव करता है, फिर हम उनका ऐसा रिप्लाई आता है ऐसा कैन ये वो जो भी है, वो बोलते हैं कि गो अहेड ऐसे ऐसे या फिर कुछ बोलेंगे, गो अहेड आएगा तो ये ट्रेड करना है ऐसे। तो ठीक है। उनका गो अहेड आएगा तो वो मेल इस सबके साथ फॉरवर्ड करना है प्रथमेश को जो हमारा ट्रेडर है मोतीलाल में। तो उसको अच्छा, ये दिख पर जाता है, उसको कोई क्लाइंट कोड दिख जाता है। डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी से ही भेजते रहोगे ना? हाँ ये क्लाइंट रिलेशन से ही भेजते हैं। तो मुझे इसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा? हाँ वो मैम दे देगी ना आपको। अच्छा, ये नोट, हाँ ये ये आप सब भी आपको नोट देना कर ही लेना। पड़ेगा, तो उससे तभी हाँ ट्रेड कि होगा। क्लाइंट रिलेशंस का एक्सेस चाहिए होगा मुझे, हाँ वो सब वो चाहिए तो मिल क्योंकि जाएगा। ब्रोकर तो यही ईमेल आईडी रीड करेगा। हाँ हाँ बराबर। बराबर बराबर। और ये और कौन सा देखना था, ये ना अपना उनको ये नहीं अच्छा, होल्डिंग ये नहीं, अरे नहीं वो पर डीलर ट्रेड डीलर को कैसे इन्फॉर्म करते हो? फॉरवर्ड, वो जो रिप्लाई है ना क्लाइंट का वही फॉरवर्ड कर देते सीधा पूरा। विद अपना सब ऐसा प्रीवियस ट्रेल मेल वो सब फॉरवर्ड कर देते हैं। ये तो डोमेस्टिक क्लाइंट्स के लिए ठीक है, अभी एनआरआई क्लाइंट्स के लिए फिर कैसे करोगे वो पीआईएस से अकाउंट को मैनेजमेंट? हाँ एक मिनट। एनआरआई क्लाइंट्स भी है ना आपके पास? हाँ हाँ। तो एनआरआई तो क्लाइंट्स उनका को कैसे होता है पता है, उनका पहला सेल ट्रेड डालते हैं, तो सेल करेंगे तो 3 दिन के बाद उनका पीआईएस में वो सेटल हो जाता है, फिर हम नहीं लोग नहीं, पीआईएस बैलेंस सेल नहीं, मंगाते हैं। अभी कोई नया एनआरआई क्लाइंट आया फॉर एग्जाम्पल, हम्म। उसने 10 लाख रुपए दिया हाँ आपको 10 लाख का बाय करना है, हाँ। तो उसका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग का मतलब नहीं नहीं ट्रेडिंग कैसे सेम है करते हैं? सेम है, Same कुछ है। डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। सेम नहीं है। नहीं, वो पीआईएस अकाउंट को रिफ्लेक्शन में टाइम लगेगा ना, आप जैसे टी हाँ प्लस टू हाँ होता तो है। वही तो बोला 3 दिन रुक के करते हैं। अच्छा, तो आप पहले जब भी देखो क्लियर देखो बैलेंस देखो होगा देखो तभी करोगे, राइट? हमारा जो ट्रेडर है ना मोतीलाल में जो ट्रेडर है ना, हम्म, तो उनको दिख जाता है पीआईएस बैलेंस क्योंकि उनके साथ लिंक रहता है ना डीमैट के साथ। तो हम्म। उनको पीआईएस बैलेंस दिख जाता है, तो हम लोग पीआईएस बैलेंस मंगाते हैं पहले, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो भेजते हैं हम लोग। मेरे लिए डोमेस्टिक और एनआरआई दोनों सेम है, आप हाँ मुझे हाँ हाँ। इन्फॉर्म करोगे तभी मुझे करना बस एनआरआई के लिए पहले पीआईएस बैलेंस ले लो,
वो पहले तो आप कंफर्म ही करो। आपके पास ही एक्सेस होगा ना, मेरे पास तो एक्सेस है ही नहीं पीआईएस का। हाँ नहीं, क्लाइंट रिलेशन से मैं बोल रहा हूँ ना आपको। आप मेल कर दोगे प्रथमेश को क्लाइंट कोड के साथ, एनआरआई क्लाइंट का, वो पीआईएस बैलेंस भेज देगा। ये देख, मैं बुक में भेजता हूँ पीआईएस बैलेंस, ये देखो। रिक्वेस्ट पर फॉर ये पीआईएस कोड। ये सब मेरे स्कोप में है कि कैसे? हाँ अभी देखना पड़ेगा वो, या फिर मैम, आप मैम को बोल दो कि पीआईएस बैलेंस निकाल के हाँ, दो क्योंकि ऐसा। ये बैंकर के साथ डायरेक्टली मैम इंटरेक्ट करेगी तो बेटर होगा। मैम ये इंटरेक्ट बैंकर के करके साथ हम नहीं लोग है, को ब्रोकर गो के हेड साथ ही है। ब्रोकर के साथ ही है। बैंक के साथ कुछ नहीं होता हमारा। ये देखो प्रथमेश, ये मोतीलाल जो मैंने बोला ना ट्रेडर है हम लोग का, हम्म। इसके साथ तो इसको बोलते हैं हाई प्रथमेश सेंड पीआईएस बैलेंस, तो ये एनआरआई क्लाइंट्स के लिए, फिर वो भेज देता है। देखता हूँ कैसे भेजता है। कोई एनआरआई का ट्रेड किया हुआ है, एक्सेल शीट दिखा दो ना। एक मिनट, रिप्लाई, चल ठीक है, इसको एनआरआई का दिखा। आपने बताया लास्ट 2 महीने में एक भी ट्रेड नहीं किया, राइट? हाँ एक दो किया है शायद, अभी याद नहीं आ रहा, जैन के स्टार्ट में किया था, उसके बाद तो नहीं हुआ ट्रेड। एसआरएफ बेचा और छोटा मोटा लिक्विड भी बाय सेल किया, और तभी कुछ वो नहीं। रिसोर्सेज भी नहीं थे ना मैम के पास करने के लिए, पर रिसोर्स आने के बाद तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। नहीं, नहीं ऐसा वैसे वैसा नहीं, नहीं है, रिसोर्स है, रिसोर्स हम ट्रेड नहीं दोनों तो करते। थे ना अभी, लेकिन अगर ज्यादा ट्रेड होता नहीं है, अगर कभी आया तो हो जाता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, डिपेंड आप मुझे करता वो है ना, बल्क वाला मार्केट पे भी डिपेंड करता इसके बाद वो बल्क वाला भी एक समझा देना, बल्क में कैसे है। हाँ करना हाँ हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, मैं अभी इसका ट्रेड देखो कैसे होता है पता है, जैसे मैंने आपको बोला ना, नॉर्मल क्लाइंट का कैसे ट्रेड होता है वैसे ही ट्रेड होता है। कुछ डिफरेंस ठीक नहीं है, ये वो देखो, मैं सुरुचि मैम के साथ एक बार डिस्कस कर दूंगा हाँ एनआरआई का नहीं, कैसे मैं करना बोल देता हूँ, फिर भी मेरा जॉब है, मैं बोल देता हूँ। देखो, अभी सपोज ये कोटक महिंद्रा बैंक सेल है और ये बाय है, ठीक है। है। हाँ तो ये सेल किया ना, तो हम लोग 2 दिन रुकते हैं। बाय के लिए। हाँ, ये सेल किया, 2 3 दिन रुकते हैं, मतलब मंडे को ट्रेड किया तो वेडनेसडे या थर्सडे को वो मेल जाता है, जो मैंने आपको बोला ना पीआईएस बैलेंस का। मतलब पर इन्वेस्टर से अप्रूवल तो एक साथ तो ही लेते हो ना, सेल का और बाय हाँ का। हाँ हाँ, ट्रेडर वही के तो साथ तो अलग अलग करते हो आप, पहले सेल का हाँ बस दिया अलग अलग फिर करते हैं, अप्रूवल एक साथ ही एक टाइम ही लेते हैं, अच्छा, सेल बाय का। इन्वेस्टर के साथ। हाँ, हाँ एक ही उसने बात। बोला गो अहेड, बस। तो हम लोग पहला सेल करते हैं, ठीक है। फिर वो 3 दिन के बाद देखो, पीएस कैसे होता है, उसका पूरा बैलेंस नहीं, उसका 10% टैक्स कटता है पीएस में जाने के बाद। हम्म। हाँ तो अब ये तो 60,000 नहीं मिलेगा। वो भी अकाउंट करना पड़ेगा ना कैश में। हाँ हाँ, 60K नहीं मिलेगा, इसका थोड़ा आपने कम ही रहेगा। आपने बोला इन्वेस्टर का अप्रूवल भी अलग अलग लेते हो, राइट? सेल का अप्रूवल अलग ईमेल जाएगा, बाय का नहीं 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 अप्रूवल का नहीं अलग नहीं 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 नहीं, यही यही मिल जाएगा एक ही। अच्छा, ये जो भी हम एक लोग साथ। बेचते हैं ना एक साथ ही, पूरा एक अच्छा, साथ ही, एक मतलब साथ ये जो भी सिर्फ है सेल आप बाय। एग्जीक्यूशन अलग अलग करोगे। हाँ एग्जीक्यूशन अलग, क्योंकि वो फिर नेगेटिव में चले जाएगा बैलेंस ना, उनके लिए रुकना ही पड़ता है, इसलिए समझ गए। इतना ही फर्क है, अभी और कुछ है नहीं एनआरआई और इसमें। बस कोई कोई क्लाइंट लोग के लिए अप्रूवल रहता है डे पे ही, उस दिन बोला बेचने तो उसी दिन बेचने का, अरे नहीं तो। वो उतना कॉम्प्लिकेट मत करो, वो हो जाएगा, वो मैम बोल देगी, इतना कुछ ठीक। नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक चलो, है, हाँ बल्क के लिए कैसे, इसके बाद क्या हाँ, है बल्क बल्क? बल्क दिखाता है, इसको बल्क का कौन सा दिखाऊं। बल्क ट्रेड फाइल का एग्जांपल लेगा ना अपने पास, भेजा रहेगा कोई भी एक बल्क। एक मिनट, हाँ इस पे ये है। बल्टेड फाइल इनको बनाने नहीं बोलेगी ना, ये बनाएगी ना। नहीं, यही इनको ही करना है सब। बल्टेड भी, हाँ, सब कुछ। नहीं फाउल। हाँ, सब कुछ। मॉडल का कुछ रोल है? तो उतना उतना मार्जिन वो कैश बैलेंस रख रहा है ना, 2% का कैश बैलेंस कोई भी एसआरएफ का बल्क ट्रेड क्या रहेगा ना। हाँ, फॉर सेलिंग एसआरएफ। डीलर फिर कंफर्म करता है ना पहले कि बाय करना है मैं क्या। बोलता हूँ। तो ये देखो, अभी ये दिखाता हूँ बल्क ट्रेड कैसे होता है। तो ये ना, ये एमओएसएल का फॉर्मेट है, ठीक है। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, ये क्या तो फॉर्मेट है? हाँ, ये एक्सचेंज कोड, ये एमओएसएल का ये फॉर्मेट है, ऐसे ही देना पड़ता है उन लोगों को, ठीक है। इसमें से क्या क्या चेंज करना है मैं बताता हूँ। ये बाय सेल, अगर सेल रहेगा तो एच डालो कैपिटल, बाय रहेगा तो बाय डालो, बी डालो, ठीक है। डिलीवरी कॉमन। हेलो, ठीक है ना। हाँ, सुन रहा हूँ, यू हाँ कंटिन्यू। ओके, तो इसमें ये फिर डिलीवरी सेम, ये एसआरएफ इक्विटी ना, तो अगर ये अपना एनएससी का जो टिकर रहता है ना, वो डालने का रहता है। और आगे सिंबल है, एनएससी सिंबल हाँ है। हाँ, हाँ, और आगे और आगे EQ, इक्यू स्पेस इक्यू, तो Space मतलब इक्विटी, ठीक है। ये क्वांटिटी। फिर क्वांटिटी और लॉट सेम ही होता है, जो क्वांटिटी में डालोगे वही लॉट में डालोगे, ठीक है।
ऑर्डर टाइप ये ऑर्डर टाइप भी कुछ नहीं है, L, जो भी है ये वही fixed है। फिर प्राइस और क्लाइंट कोड, मतलब अगर प्राइस अगर 2250 चल रहा है तो 2250 ही डालो, और क्लाइंट कोड जो है वो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। और ये गुड टिल डेट, तो फिर ये तीन भी सेम, जो भी है 00D ये सेम। और यहाँ पे सिर्फ जीटीडी तारीख जीटीडी तारीख क्या आज था? का डाल दो। सॉरी, हाँ लास्ट डेट कौन सी है? जीटीडी हाँ, तो गुड टिल डेट। गुड टिल डेट। अच्छा, गुड टिल हाँ डेट। हाँ, तो वही, तो अभी आज आज करना है ना, तो 2902, बस उतना ही चेंज करो, बाकी सब बाकी जैसा सब है same। वैसे ही। ठीक है, तो पर अभी ये मुझे सपोज, हर एक क्लाइंट में जाके देखना पड़ेगा किसकी नहीं कितनी नहीं, हाँ हाँ, क्वांटिटी मैं है। बताता हूँ, नहीं नहीं इतना नहीं है, बता। तो अगर मोतीलाल, मुझे सपोज अगर पूरा ये कोटक महिंद्रा बैंक बेचना है मेरे इसमें, ठीक है, एक एग्जांपल दिखा दे बाद में। हाँ दिखाता हूँ। ये तो बेसिकली अभी डिसीजन सब सुरुचि मैम से फ्लो हो रहा है, सिस्टम कुछ हाँ हाँ हाँ, इंडिकेशन नहीं दे रहा है क्या बाय करना है नहीं क्या सेल करना नहीं है। नहीं नहीं। एक्सेल बनाना, ईमेल करना। ठीक है, अगर ये अभी कोटक, ये है कोटक, होल्डिंग है। ये पूरे एमओएसएल का होल्डिंग है, नॉन एमओएसएल के हम लोग नॉन एमओएसएल का भी फ्रूटी से ले लेते हैं। तो अभी अभी टाइमिंग के लिए यही समझो, ये कोटक का ये ही ले रहे हैं। ये क्लाइंट वाइज होल्डिंग है। हाँ, क्लाइंट वाइज कोटक में कौन से क्लाइंट का कितना होल्डिंग है वो है। ठीक है, ऐसा रिपोर्ट आता है एमएसएल से। नहीं, ये एक स्टॉक का है, कौन कौन से क्लाइंट। तो अभी ये अभय जो और ये सब क्लाइंट का, ये क्लाइंट कोड इधर है, क्वांटिटी इधर है, तो इधर से पूरा क्वांटिटी ले लेगा। फिर पूरा बेचना है तो हाँ, पूरा बेचना है तो यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, पहले मैंने क्वांटिटी ये कर दिया, प्राइस अभी नहीं करते, प्राइस बाद में। फिर ये क्लाइंट क्लाइंट कोड, क्लाइंट कोड पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी कोटक का क्या है, कोटक बैंक है ना, कोटक बैंक EQ। कॉमा और ये स्लैश EQ। समझ गए। हाँ, यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, अगर पाएगा तो बाय डालते, सेल है। ऑर्डर टाइप भी हो गया ना, यहाँ पे 229 आएगा, ये भी ट्रैक करना है। अभी प्राइस क्या चल रहा है, 1700 या फिर जो भी चल रहा रहेगा वो ये डालेंगे। सब सेटलमेंट मोतीलाल के कस्टडी में ही हो रहा है ना? हाँ 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 हाँ। कोई नॉन एमओएसएल कस्टडी है क्या? हाँ, नॉन एमओएसएल का इसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। नहीं नॉन नहीं। एमओएसएल का हम लोग उनको एक एक करके बेचते हैं। हाँ भूल गए। चार हाँ, पांच क्लाइंट ही है। हाँ, 5। 5-6 क्लाइंट है, तो उनको हम लोग एक एक करके ईमेल करते हैं, तो वो लोग खुद से कर लेते हैं। खुद से करके कॉन्ट्रैक्ट नोट भेजते हैं। ठीक है। तो ऐसे है, ये फाइल बन गया, तो फिर ये भेज देने का वही प्रथमेश को। तो एक ही टाइम पे बल्क ट्रेड हो जाता हाँ, है। और वो कंफर्मेशन भी भेज देता है। और इसमें जो एन लिखा है वो NRI क्लाइंट्स है, एन से स्टार्ट जो भी होता है ना। वो ट्रेडिंग तो कोड के बेसिस पे हो रहा है। हाँ, तो फिर वो लोग भी है इसमें, एक ही साथ हो जाता है सबका। पर हम लोग को बाय करते टाइम हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, अभी नेक्स्ट डे समझो कुछ बाय करने का है, वो कैश सपोज ऐसा ऐसा है कि ये सेल करके हम लोग को कुछ बाय करने का है, तो फिर ये एन एन वाले लोग का थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये लोग को छोड़ के फिर बाकियों का ट्रेड करके ये एन वाले लोग को छोड़ देना रहता है। क्योंकि उनका टाइम लगता हाँ, है उनका उनको। वो 3 दिन लगता है ना PI सेटल होने, तो वो सब थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, और कुछ नहीं। ये बल्क ट्रेड है। नॉन एमओएसएल के लिए आपने क्या बोला, आप क्या अलग से ईमेल करते हो? ठीक। जैसे जैसे ठीक ठीक है, एमओएसएल के लिए मैं ईमेल बोल, करते हो। हाँ 1 मिनट दिखाता हूँ। अजय अजय इनका दिखा रहे हैं। हम्म, अभी हम लोगों ने रिसेंटली क्या किया था, वो SRF सेल किया था। सारे fill किया था। विजय गुंटूर दिखाता हूँ, चल विजय गुंटूर, हाँ ये देखो। तो अभी इसका SRF, इसका भी सेल करना था ना, तो इसको मैसेज किया था, डियर टीम, अरे ये नहीं, ये उसने किया है, मेरा में। हाँ, ये मेरा मैसेज है, डियर मिस्टर विजय, हो गया विल एग्जीक्यूट ट्रेड में।
अरे किधर है मेरा मेल? हाँ ये देखिए हाँ ऐसे- ये है, ऐसे। ठीक है। भाई शांति से शांति से। हाँ, देख, क्या है, क्या लिखा है? हाँ क्वांटिटी 92 ऑफ एसआर। हाँ, रिकमेंड सेलिंग एंटायर क्वांटिटी 92 क्वांटिटी ऐसा उसमें ऑफ एसआरएफ लिमिटेड, काइंडली शेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एज पर सून वो एज। पहले जो ईमेल किया था वैसे ईमेल नहीं करते हो जैसे डोमेस्टिक नहीं नहीं, अभी ये सिर्फ एक ही करना है ना, कुछ बाय नहीं करना है ना अलग से, तो ऐसे ही करते हैं। पर एक ही स्टैंडर्ड ही रखो ना, फिर सब इसके लिए अलग उसके लिए अलग। नहीं नहीं वो ठीक हाँ ठीक है। कोई दूसरा रीजन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई रीजन नहीं है। आप भेज हाँ, सकते हो, तो आप फिर और जो वैसे कर- एमओएसएल के लिए आपने वो टेम्पलेट बनाया ना एक्सेल का, हाँ, वही तो उसके लिए टेम्पलेट लेकिन कैसा पूरा वो वापस वो पूरा एक्सेल बनाना पड़ता है ना, इसमें एक ही ट्रेड है, तो ये ऐसे ही भेज देते हैं, वो भी उसको भी इजी, हमें हमें भी इजी। पूरा एक्सेल क्वांटिटी डाउनलोड करो, उधर ये करो वो करो। समझिए। ये फिर आपको कंफर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं, राइट? एग्जीक्यूट होने के बाद। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज देते हैं, फिर वो हम लोग कृति को भेज देते हैं, तो मैम को कुछ कैश की वगैरह देखने हैं इन्वेस्टर वाइज, वो सब जरूरत पड़ती है क्या? किसके पास कितनी कैश है वगैरह कुछ? एक मिनट, कैश का दिखा, तेरे पास है कैश? आ जाएगा मैम पीछे। ऑर्डर क्या बेसिस पे लेती है डिसीजन? वो हम लोग का रिसर्च में अगर कुछ आ गया ये बाय करना है, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, 5% बाय बाय कौन करना से है। इन्वेस्टर में करना है या हाँ, तो फिर किसको? वो कैश देते ना, अगर कैश है किसी के पास नहीं है, तो फिर उसके लिए फिर क्या बेचना है खरीदना है वो सब भी फिर एक एक अरे बहुत डीप है रे, तो फिर जगह बनाना पड़ता है। अगर कोई इन्वेस्टर के पास एक स्टॉक ज्यादा हो गया है, तो फिर उसका वो ट्रिम करके फिर इसमें ऐसा, तो अगर वो अभी आपको करना है कि मैम को करना है, वो भी डिस्कस करना पड़ेगा। अरे ऊपर की भी अच्छा। ये लोग सुबह बना ये एमओएसएल कैश है, राइट? हाँ, हाँ ये तो बेसिकली ये कौन कैश, MOSL? हाँ ये कैश लिक्विड बीज निफ्टी बीज ये हम लोग लेते हैं, इसमें डालते हैं, तो बेसिकली ये ये एमओएसएल से रिपोर्ट डाउनलोड होता है? हाँ अच्छा, ये कैश एमओएसएल का ऑप्शन दिखाना एक मिनट। मतलब, लॉगिन एमओएसएल के लॉगिन पे किधर अच्छा है ये हाँ report? हाँ हाँ, अरे इसको हाँ, ये क्लाइंट वाइज एयूएम रिपोर्ट, यहाँ से ऑल प्रोडक्ट्स गो, तो ये आ जाता है, तो ये डाउनलोड करेंगे तो ये वाला फाइल आ जाएगा, कैश वाला। हाँ एक मिनट, हाँ साइन करो इधर, ऐसा हिंदी है, हो गया। ठीक है। हाँ, तो ये कैश वाला फाइल आता है, फिर लिक्विड बीज और निफ्टी बीज का इधर से सिंगल होल्डिंग रिपोर्ट में, मतलब यहाँ से हम लोग को एक होल्डिंग अक्रॉस क्लाइंट वो मिल जाता है, जैसे मैंने अभी कोटक महिंद्रा बैंक का निकाला था ना, वैसे वैसे मतलब ये अलग अलग डाउनलोड करते हो ना, लिक्विड बीज, निपॉन हाँ बीज, ये लिक्विड निफ्टी बीज, बीज। हाँ ये डाउनलोड करते हैं, फिर निफ्टी बीज वो डाउनलोड ये करते हैं। ये एक पीरियोडिसिटी क्या है? वीक में एक बार करते हो कि डेली करते हो? ये मैं डेली करता हूँ। डेली करते हो? हम्म, डाउनलोड ही करते हाँ ये 2 मिनट का काम नहीं है बस, हो? सब फॉर्मूला लगे हुए हैं, ये सिर्फ इधर डाला ना, तो ये अपने आप आ जाता है। तो ये देखो, ये देखो, ये एन वाले क्लाइंट है ना, तो इनका पीआईएस बैलेंस है, तो अभी इसका 16,000 करके पीआईएस बैलेंस है, इसका 2,000, तो अभी मैंने उस दिन कुछ तो 11 11 ये 15 ऐसा लिक्विड बीज बाय किया ये लोगों ने, तो अभी मैं कल 3 दिन होगा ना कल, तो मैं वापस पीआईएस बैलेंस मंगा लूंगा और फिर यहाँ पे अपडेट करूंगा वो सब ऐसे। ये देखो यहाँ पे मैंने कैश ऐड किया है सब, बहुत डिफिकल्ट है एक दिन में इतना, ठीक है, समझ गया। ये एक दिन में थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे नहीं, और अरे नहीं, डोंट वरी, आप प्रोसेस समझा दो। एनआरआई का भी आपको, एनआरआई को मिल गया। एनआरआई का तो आपको वो डीलर दे देता है पीआईएस बैलेंस कितना है। हाँ हाँ, बराबर। वो अगर कोई ट्रेड हुआ तो ही देखना है, नहीं तो नहीं देखना है। ये अभी ये 1 2 हफ्ते तक इतना ही था, फिर मैम ने बोला कि इनका बाय करके रखो लिक्विड बीज, तो हमने किया बाय, तो अभी ये कल हम लोग अपडेट कर देंगे यहाँ पे।
बस ये इतना कैश आ जाता है, तो यहाँ पे ये कैश है लिक्विड। तो ये ठीक है, टोटल कैश मतलब ये जो ये डीमैट में है वो, फिर लिक्विड बीज और निफ्टी बीज, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो अपने को कैश मिल जाता है, कुछ नहीं। ठीक है, समझ गया। और निफ्टी बीज से तो फिर हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर देखते हैं, मतलब ऐसे इसमें नहीं करता। नंबर फिल्टर डाल के। हाँ, तो फिर अभी तो देखते हैं, मतलब यहाँ पे फिर इसके पास 50-40 इतना कैश है ना अभी, तो फिर मैम बोलेगी कि अभी इतना कुछ buy जो करना 15 के नीचे है, ये लोग है तो इनका ये बेच के ये खरीदो, ऐसा कुछ तो वो सब होता है। मैम कितने बजे डिसीजन लेती है? मॉर्निंग टाइमलाइंस क्या है आपका? क्योंकि मार्केट तो 8:45 स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इतना कुछ ये नहीं है। दिन भर में आपको बाय करना है, राइट? हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। और कुछ बताने लायक इसमें? नहीं, आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, बस ये आपका जो टेम्पलेट्स हैं, वो टेम्पलेट्स के हिसाब से तो मुझे ऑर्डर जनरेट करके ईमेलिंग करना है। क्लाइंट का, इन्वेस्टर का फीडबैक आने के बाद ही मुझे वो कंट्रोल रखना पड़ेगा। इन्वेस्टर का फीडबैक आने के बाद ही मुझे डीलर को पास ऑन करना है। हाँ, हाँ, तो देखो एक और एक लिस्ट है हमारी। एनआरआई का थोड़ा केयर करना पड़ेगा मुझे देखने से हाँ पहले बैलेंस शीट। हाँ, तेरा नहीं आता ना। बाकी वो डेली बेसिस पे वो होल्डिंग अपडेट करते रहना पड़ेगा, एमओएसएल से डाउनलोड करके, हाँ, एमओएसएल। वो अरे 2-5 मिनट का काम है, मैं बोला ना, सिर्फ शीट डाउनलोड करना है अरे पर वो और तो एक फॉर्मूला अपने इन्वेस्टर आप के लग लिए जाता ना, है। मुझे नहीं नहीं, इन्वेस्टर वाइज है ना, मुझे सारे इन्वेस्टर का रखना पड़ेगा ना रेडी। हाँ, वो तो सबका ही रहता है। वो तो डेली का काम हो गया ना। कौन सा बोल रहे हो, कैश वाला? नहीं नहीं, होल्डिंग होल्डिंग जिसके बेसिस पे आपने ऑर्डर जनरेट किया ना, वो फॉर्मूला डाला है आपने, तीन आपने परचेज हाँ, वो प्राइस। रोज नहीं करना है, जब रोज अगर नहीं मैम ने करना। बोला ट्रेड करना है तो ही, वरना हाँ नहीं वही, करना जिस दिन ट्रेड होगा उस दिन सारे क्लाइंट्स का मुझे करके रखना पड़ेगा। है। सारे क्लाइंट्स का नहीं। नहीं, सारे क्लाइंट्स का देखो नहीं। वो ना जिनमें बहुत सिचुएशनल है। अभी देखो, अभी ये इतने लोग के पास अगर इनका कैश है तो हम लोग तो सबके उनका लिए एक एक करके नहीं करेंगे। वो बल्क बेसिकली, अगर आपने बोला कि ये से 15% के नीचे ऊपर कैश है, उनमें बाय करो, तो जिनके मैं पास आपको 15% ज्यादा कैश है, उनका तो अपडेट करना पड़ेगा, राइट? हम्म देखो, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। मैम ने बोला कि चल, मैं आपको इजी देता हूँ कि 8% एक स्टॉक बाय करना है, ठीक है? तो आप क्या करो, देखो ना, अभी 8% मतलब कैसे कैसे करेंगे रे? कैसे बाय 5% ले होगा? ले। हाँ, मतलब 5 से 5%। लेके, हाँ, 5% बाय कर देखो लो। मतलब जिसके पास जितना है ना, इसके पास 5.6% है तो 5.6 बाय करो। हाँ, फिर अगर और इसके तो पास देखेंगे। 8.6 है तो 80 बाय करो, ऐसा नहीं है कि पूरा हाँ, बाय करो करके वैसा। और उसके बाद जिसमें कम बाय किया रहेगा उसमें देखेंगे फिर बाद में वो, कि उसमें क्या बेचना है, क्या खरीदना, क्या बेच के खरीदना है, फिर वो बाद में देखते हैं। ये देखो, ये क्लाइंट है मतलब वो छोड़ के गया है। इन शॉर्ट तो मुझे डेटा प्रिपेयर तो इन सब का, सभी क्लाइंट्स का रखना पड़ेगा ना, तभी मैडम डिसीजन ले पाएगी ना, क्या बाय करना है, क्या सेल करना हम्म, नहीं नहीं। वो, अरे उसको मुझे समझा, उसको क्या चाहिए। ये देखो, हम लोग कैसे करते हैं एक, क्या चाहिए फिर? अरे वो मेरे पास था यार, मैं क्या? है। अभी आपने फर्स्ट शीट ओपन की थी ना तो एक्सेल? पहले नहीं, पहले आप जो कृति का हम लोग को डेली बेचते हो ना, डेली वो हम्म पूरा क्लाइंट्स का बेचते हो ना, तो उसमें हम लोग फिल्टर मार के देखते हैं, ऐसे ही ओकेजनली देखते हैं कि कौन सा सेक्टर में अभी सब क्लाइंट्स इक्वल नहीं होते ना, कोई क्लाइंट है जो बहुत पहले आया है तो उसके पास एक स्टॉक बहुत हैवी है। जो हम्म क्लाइंट अभी हम लोग इक्वल नहीं करते, अभी सब टाटा एलिक्सी है, तो टाटा एलिक्सी अभी 2019 के क्लाइंट के लिए बहुत बाय की है, तो उसका हम्म अभी वो 8% अगर बाय करेगा तो वो अभी 15-20% हो गया रहेगा ऐसा, ठीक है? और समझ लेकिन गया। आज जो क्लाइंट आ रहे हैं उनके लिए हम लोग टाटा एलिक्सी बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है करके हम लोग बाय नहीं कर रहे। तो समझा, बेसिकली इसके लिए वो एडॉक एडॉक थोड़ा है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जिस क्लाइंट में बोलेंगे उसमें बाय कर। हाँ, आपकी वो एक्सेल शीट ओपन करो ना, जिसमें ईमेल और ट्रेड था, वो होल्डिंग थी एमओएसएल की। कौन सा वापस बोलूं, कौन सा? फर्स्ट एक्सेल शीट। रिया भंडारे, रिया भंडारे। हाँ, इक्विटी वाली।
कौन सा ये? नहीं नहीं, ईमेल भी रिया था ना जिसमें सेकंड शीट पे ईमेल है, रिया भंडारी ईमेल कंटेंट है वो। हाँ ये ये वाला ये। हम्म ठीक है। अलोकेशन वो फर्स्ट शीट पे जाओ। ये आप तभी अपडेट करते हो जब उसमें ट्रेड करना हो आपको, राइट? हाँ, इंडिविजुअल ट्रेड करना हो, इंडिविजुअल मेन तो। बल्क ट्रेड नहीं, इंडिविजुअल। हाँ तो ये हम लोग डेली बेसिस पे नहीं करते अपडेट, ये देखो, मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी सपोज ये तो स्वामीनाथन जी। आप जो डेली बेसिस पे काम करते हो वो कौन कौन सा है? सिर्फ कैश, ये कैश डाउनलोड करना डेली बेसिस पे? देखो, ट्रेड हमारा डेली काम है ही नहीं, ट्रेड ऐसे नहीं, कभी नहीं। तो महीने में एक बार ऐसा होता है। हाँ, पर डेली बेसिस पे कुछ वर्क करते हो कि नहीं करते हो? कैश वगैरह नहीं निकालते हो कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ कैश फाइल बनाते हैं, बाकी हाँ हम लोग वही, का काम अलग होता ये है। कैश फाइल आप डेली बेसिस पे निकालते हो, राइट? हाँ हाँ, हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, डेली बेसिस पे और क्या क्या निकालते हो कैश नहीं के नहीं, अलावा? उतना ही बस उतना कैश। ही। अच्छा, ये मैम को प्रेजेंट करते हो हाँ, हाँ उनको भेज देते हैं। कैश फाइल? ऐसा। तो सपोज अब अगर देख लिया था कि इसमें 40% कैश है, तो मैम बोली कि चलो इसके लिए एलोकेशन बनाओ या फिर ऐसे कुछ, तो और इंडिविजुअल। बोल देगी कि इसके लिए क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो सब वो बोल देंगी। तो फिर आपको ठीक है, सिर्फ इधर आके ये प्लस माइनस, ये जो बोला ना एडिशन, ये करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अंडरस्टूड। कोई नया एडिशन आया कॉर्पस तो भी मैम इन्फॉर्म करती है कि इसका एक हाँ लाख हाँ रुपए हाँ, आया है? आपका जॉब है, वो करेंगे आपको। हाँ। ठीक है। एक काम करो ना, ये एक्सेल शीट और आपकी कैश वाली एक्सेल शीट दोनों ईमेल कर दो ना मुझे ठीक है, रेफरेंस के लिए। चलेगा। ईमेल आईडी कौन से, किस पे करूँ? महेश को करो मैं या के सर्विसेज आपको आपको जो जो ईमेल से आता है ना रोज ईमेल, ठीक है, उसी को email कर दो। अपॉर्चुनिटी इस पे करूँ ना, की हाँ, सर्विसेज? उस पे कर दो, चलेगा। ठीक है, चलेगा। ओके। और एक जो इन्वेस्टर को ईमेल भेजते हो ना, वो अटैच करके हाँ भेज देना इसी में ठीक है, ठीक वो है। ईमेल को अटैच करके भेज देना। ओके। ठीक है, चलेगा। और कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटी है? बल्क अपलोड वाली फाइल भी भेजना साथ में। हाँ, हाँ, ठीक है, जो जो बस। आपको लगेगा ना, वो बेचते हैं, ठीक है। आपको जो लगेगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, और कुछ? ओके। ठीक। और कुछ लगेगा तो कॉल करना हमको। हाँ, हम लोग। हाँ, अच्छा, कुछ भी मैम डाउट है? रहेगा तो हम लोग। नेक्स्ट वीक मैम तक है है, कि नहीं है अभी? नेक्स्ट वीक तक है। हेलो। हाँ, हाँ हाँ, कुछ भी रहेगा तो मैम को आप हमसे पूछ नहीं, लेना। मैम को कुछ क्लोजिंग ऐड करना हो तो? मैम तो अभी कॉल पे है, इंटरव्यू के कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे हैं ठीक है, तो। नो प्रॉब्लम। तो मैं ये फाइल्स गो थ्रू करता हूँ और फिर रिवर्ट बैक करते हैं आपको कैसे हाँ कैसे। हाँ, कुछ भी रहेगा कभी भी आप पूछ लो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। ओके, बाय। बाय बाय। काय वाटतं सगळं